بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں تبدیلی تب ہی ممکن ہے جب ہر شخص اپنی اصلاح میں لگ جائے۔ ہر اس محفل میں گھسنے کی کوشش نہ کرو جہاں تمہارا کوئی جوڑ نہ ہو۔ غلط اوزاروں کے ساتھ محنت کرنے کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ اس دنیا میں دھوکے باز کی زبان میٹھی اور دل کڑوا ہوتا ہے۔ بھوک واپسی کے راستوں کی فکر بھلا دیتی ہے۔ انسان یہ جانتا بھی ہے کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ گناہ کرتے وقت یہ دیکھتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا۔ اس دنیا میں زیادہ کی ہوس حاصل کا لطف بھی ختم کر دیتی ہے۔ جاہل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ پوری بات سننے سے پہلے جواب دیتا ہے۔ مایوسی انسان کی بہت بڑی دشمن ہے۔ مشکل وقت انسان کی ہمت کا امتحان لینے آتا ہے۔ زبان کا کہا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ سب کہنے کی باتیں ہیں، کوئی کسی کا درد نہیں سمجھتا سوائے اللہ کے۔ یا اللہ، مجھے اپنی محبت میں ایسا مکمل کر دے کہ مجھے تیری رضا کے علاوہ کوئی چاہت نہ رہے۔ اگر نماز کے وقت طواف کعبہ رک سکتا ہے تو تیرے کاروبار اور کام کیوں نہیں؟ اگر تم نے نماز چھوڑی تو سمجھ لو کہ راحت اور برکت تم سے چھوٹ گئی۔ اس دنیا میں جو شخص اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے تو اسے ضرور سیدھی راہ کی طرف ہدایت کی جاتی ہے۔ بادشاہوں کے پاس بیٹھنے سے کبھی بادشاہت نہیں ملا کرتی، لیکن اولیاء اللہ کی ایک ہی نگاہ انسان کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ پیر کے دل میں نقش خداوندی ہوتا ہے اور مرید کے دل پر پیر کا نقش ابھرتا ہے۔ انسان کو جتنا لگاؤ روزی سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑا ہو جاتا۔ اللہ سے کبھی مانگنے لگو تو اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اس کی شان دیکھ کر مانگنا۔ تعجب ہے کہ اللہ اتنی ساری مخلوق میں سے مجھے نہیں بھولتا، اور میرا تو ایک ہی اللہ ہے، پر ہائے افسوس میں اسے بھی بھول جاتا ہوں۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ تقدیر کے لکھے سے چھٹکارا حاصل کرنے کا راستہ فقط عاجزی ہے۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے، اور تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے لیکن تو نہر کی تلاش میں ہے۔ سر ہو سجدے میں دل دغا بازی میں ہو تو بھلا ایسے سجدوں سے کیسے خدا راضی ہو۔ اپنے کردار پر ڈال کر پردہ اے اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے کہ زمانہ خراب ہے۔ اگر ہزار منافق مل کر آپ کی جڑیں بھی کاٹ دیں، اور اگر کوئی ایک اچھا خاندانی اور مخلص دوست آپ کو سہارا دے تو یقین مانیے تو آپ کبھی گن نہیں سکتے۔ کم رشتے بنائیے لیکن مخلصی سے نبھائیے، کیونکہ محبت تو بہت سے لوگ آپ سے کر سکتے ہیں لیکن مخلص سارے نہیں ہوتے۔ زندگی میں ان دو لوگوں پر کبھی تبصرہ نہ کرو، جن کو تم چن لو اور جن کو تم چھوڑ دو۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو کہ تم ظالموں میں سے ہو۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر ہی گلے گلزار بنتا ہے۔ دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں لیکن پردے ہوتے تھے، اور تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسے ہوتے تھے۔ پریشان مت ہوا کرو، کیونکہ ٹھوکر انہی کو لگتی ہے جنہیں اللہ
थामना चाहता है। गीबत करना कमज़ोर आदमी की आखिरी कोशिश होती है। बुराई की तरफ नफ्स दौड़कर जाती है, जबकि नेकी की तरफ उसे घिसट कर लाना पड़ता है। इस दुनिया में माँ बाप की रोक टोक भी एक नेमत है, वरना औलाद जगह जगह पर जलील और रुस्वा नजर आए। जिस घर में दीन और नेक माल हो, वो घर तहजीब और इंसानियत का बेहतरीन नुमाइंदा होता है। मांगने वाले की लोग मदद तो करते हैं मगर पसंद नहीं करते, क्योंकि पसंदीदगी हमेशा खुददारी को मिलती है। जब आपका ज़मीर मलामत करना छोड़ दे तो समझ लो कि अब इंसानियत आप में ख़त्म हो चुकी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो सलामत रहना चाहे वो अपनी ज़बान को महफूज रखे। जो वक्त गुज़र गया उसको याद करके कुछ असूल बना लें तो जो वक्त बाकी रह गया है वो बेहतर हो जाएगा। इस दुनिया में अक्ल वाला अपने काम पर और वहीं जाहिल अपनी उम्मीदों पर भरोसा करता है। जब दुनिया तुम्हें घुटनों के बल गिरा दे तो समझ लो कि ये दुआ मांगने का बेहतरीन वक्त है। कभी तन्हाई महसूस ना करिए, क्योंकि पूरी कायनात आपके अंदर मौजूद है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा नाम बाकी रहे तो अपनी औलादों को अच्छे इखलाक सिखाओ। हाल के बदहाल होने के बावजूद भी मुस्तकबिल के खुशहाल होने की उम्मीद कभी तर्क नहीं करनी चाहिए। जागने वाले जिंदा हो तो सोने वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पढ़ाई का सबसे पहला मकसद शऊर और सवाब कमाना हो, बाकी पैसा तो जाहिल भी कमा लेते हैं। जिसकी नींद पर ख्वाब नाजिल हो वही ताबीर आशना हो सकता है। मुस्तकबिल में जलने वाले चिराग माजी के अंधेरे को दूर कर देते हैं। आंसू खालिक और मखलूक के दरमियान कोई भी पर्दा नहीं रहने देते। अगर इस दुनिया में ख्वाहिश हासिल से ज़्यादा हो तो इंसान खुद को गरीब समझने लगता है। क्या अजीब वक्त चल रहा है। जो बीमार होगा वो तन्हा होगा और जो तन्हा होगा वो बीमार नहीं होगा। जिन्हें अपने छोड़ देते हैं उन्हें गैर मिल जाते हैं। कभी माँ बाप याद आए तो बहन भाई मिलकर बैठा करो, क्योंकि आपका ऐसा करने से किसी के चेहरे पर माँ की मुस्कुराहट नजर आएगी तो किसी के लहजे में बाप का अक्स। जिसको अल्लाह दुआ की तौफीक दे वो कबूलियत से महरूम नहीं रह सकता। जिसको अल्लाह ने इस्तग़फ़ार की तौफीक दी वो मग़फ़िरत से महरूम नहीं रह सकता, और जिसको अल्लाह ने शुक्र की तौफीक दी वो नेमत से महरूम नहीं रह सकता। अल्लाह का ज़िक्र हमारी रूह का और हमारे जिस्म का ताल्लुक़ और राब्ता पैदा करता है, और जब ये राब्ता कायम हो जाता है तो बेचैनी से निजात मिल जाती है। इस दुनिया में ताकतवर का नुकसान ना कीजिए, क्योंकि वो आपकी दुनिया खतरे में डाल सकता है, और वहीं कमज़ोर का नुकसान ना कीजिए, क्योंकि वो आपकी आखिरत को खतरे में डाल सकता है। अपनों से इतनी शिकायतें मत कीजिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि शिकायतों को दूर करते करते वो खुद ही आपसे दूर हो जाएं। अपने दुश्मन को हमेशा माफ़ कर दो, क्योंकि ये उसको सबसे ज़्यादा अजियत देगा। अगर कोई ये कोशिश करता है कि वो सबसे अच्छा समझा जाए तो वो बेवकूफ़ों का सरदार है। झुकी हुई शाख फलदार ज़रूर होती है, मगर ज़्यादा झुकी हुई शाख रास्ते पर चलने वालों के लिए मुश्किलात पैदा करती है। जब कोई हर वक्त तुम्हारी ऐबजोई करे तो इस इंसान को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करो। इस दुनिया में जब किसी आदमी को उसकी बिसात से ज़्यादा दुनिया मिल जाती है तो वो लोगों के साथ
बदसलूकी करता है। इस दुनिया में एक समझदार शख्स दूसरे नासमझ को जानता है, क्योंकि एक ज़माने में वो भी नासमझ था, लेकिन एक नासमझ दूसरे समझदार को नहीं जानता, क्योंकि वो कभी भी समझदार नहीं रहा। इस दुनिया में सलामती इसी में है कि अपना मुंह बंद रखो, क्योंकि जब तक मछली का मुंह बंद रहता है वो कांटे की गिरफ्त में नहीं आती। हज़रत अली ने फरमाया कि वो जगह छोड़ दो जहां तुम्हारा एहसास और तुम्हारे अल्फाज की कद्र ना हो, चाहे वो फिर किसी का दिल हो या घर। इंसान की फितरत है कि लाहासिल के लिए रोता है और हासिल को रुलाता है। जिसने तुम्हारे साथ बुराई की हो उसके साथ तुम एहसान करके उसका बदला दे दो, क्योंकि एहसान बस ज़बानों की ज़बान बंद कर देता है। अगर आप किसी की मदद इस नियत से कर रहे हैं कि वो बदले में आपको कुछ देगा, तो इसका मतलब ये है कि आप नेकी नहीं बल्कि तिजारत कर रहे हैं। अगर आप इस दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं तो पहले नाकामी का इस्तकबाल करना सीख जाओ। तो पहले नाकामी का इस्तकबाल करने का हौसला पैदा कीजिए। इस दुनिया में जो बहुत अच्छा लगे उससे कम ही मिला करो, क्योंकि इस तरह तुम फायदे में रहोगे। इस दुनिया में नाकामी बरसाती बादल की तरह है और तुम्हारे इरादे एक छाते की तरह। जैसे नजर आना चाहते हो वैसे ही बन जाओ। खामोश रहो, क्योंकि सिर्फ खुदा ही तुम्हारे दिल का बोझ हल्का कर सकता है। नफ्स की एक ख्वाहिश पूरी करने से अल्लाह के रास्ते में सैकड़ों रुकावटें पैदा हो जाती हैं। ये तुम्हारी जो नफ्स है, तुम अगर इसे खैर में मसरूफ़ नहीं करोगे तो ये तुम्हें शर में मसरूफ़ कर देगी। गलती और भूल हर शख्स से हो जाती है, लेकिन समझदार वो होता है जो जल्द ही अल्लाह से रुजू कर लेता है। इस दुनिया में सबसे बड़ी सल्तनत अपनी नफ्स का हुक्मरान होना है। दूसरों के सहारे जीना छोड़ दें, क्योंकि आप पैदा ही खड़े होने के लिए होते हैं। मौलाना रूमी कहते हैं, इंसान का दिल और नज़र काबू में ना हो तो वसवसे पैदा होते हैं। इंसान को अपने इखलाकी किरदार की पासदारी करना चाहिए, वरना मरते वक्त पछतावा उसका मुकद्दर होगा। मौलाना रूमी कहते हैं कि तू परहेजदार बन, फिर तू अपनी रूह की ताकत दे। इंसान के चेहरे का रंग दिल के हालात की अलामत है। जो शख्स बचपन में तमीज़ नहीं सीखता वो बड़ा होकर भी उसे नहीं सीख पाता। इस दुनिया में नींद एक मुतमईन ज़िंदगी का सबूत है, क्योंकि खुशकिस्मत है वो जिसकी नींद किसी खौफ या किसी शौक से परेशान ना हो। अगर कहीं ये शक भी हो जाए कि ये शख्स अल्लाह के करीब है, तो उस शख्स के करीब हो जाओ। इस दुनिया में सब्र करने वाला वो होता है जो जलाली आदमी के साथ गुजारा करे। नस्लें संवर जाती हैं जब कोई कुरान पाक को समझकर पढ़ना शुरू करता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदमी का घटिया होने के लिए यही काफ़ी है कि वो अपने मुसलमान भाई को हकीर और कमतर समझे। परेशानी में मजाक और खुशी में ताना मत दो, क्योंकि इससे रिश्तों में मौजूद मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। जब लोग रास्ते अलग करने का फैसला कर लेते हैं तो सबसे पहले राब्ता कम कर देते हैं। हारना तब ज़रूरी होता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब ज़रूरी होता है जब लड़ाई अपने आप से हो। हम मुसलमानों में हर मुसलमान ईमान पर मरना चाहता है, लेकिन ईमान पर जीना कोई नहीं चाहता। अल्लाह चाहे तो
एक पल में कर ले कबूल, मगर ये देरी तुम्हारी हिफाजत की इंतजामात हैं। कभी कभी हम और अल्लाह जानता है कि हम पर क्या बीत रही होती है। जिंदगी आजमाइशों का समंदर है, किसी से लेकर आजमाया जाता है तो किसी को देकर आजमाया जाता है, और कहीं सब्र की तो कहीं शुक्र की आजमाइश है। ये तो रहमान की रहमत को गवारा ही नहीं कि वो तुम्हें तारीकी में भटकता छोड़ दें। अपने अंदर की सोच को साफ रखें, क्योंकि कश्तियाँ बाहर के पानी से नहीं बल्कि अंदर के पानी से डूब जाती हैं। बेमौत मर जाता है इस दुनिया में बेआवाज़ रोने वाला। हज़रत अली ने फरमाया, जो शख्स बुरे लोगों के साथ एहसान करता है वो खुद भी उनके शर से महफूज नहीं रह पाता। इस दुनिया में हया की इंतहा ये है कि इंसान खुद अपने आप से हया करे। नर्म दिल लोग खालिक कायनात की सबसे खूबसूरत तख्लीक हैं। इस दुनिया में गीबत करने वाले की दुआ कभी कबूल नहीं होती। नशा किसी भी चीज़ का हो इंसान को गुलाम बना देता है। इस दुनिया में माँ की दुआ कभी बदनसीब नहीं होने देती, और वहीं बाप की दुआ कभी गरीब नहीं होने देती। गीबत अमल को खा जाती है, झूठ रिज़्क़ को खा जाता है, गुस्सा अकल को खा जाता है, और तकब्बुर इल्म को खा जाता है। अल्लाह ताला से जब भी मांगो भरोसे के साथ मांगो, क्योंकि वो तब भी देता है जब तुम नहीं मांगते। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि तुम मांगो और वो अता ना करें। ज़माने के रुजू से सबक मैंने ये सीखा है कि किसी के साथ मत चलना, अगर चलना पड़े भी तो हमेशा फासला रखना, क्योंकि इस दुनिया में किसी के ज़्यादा पास आने से हमेशा रिश्ते टूट जाते हैं। इस दुनिया का सबसे अच्छा तोहफ़ा वक्त होता है, क्योंकि आप अगर किसी को अपना वक्त देते हो तो आप अपनी ज़िंदगी का उसे एक पल देते हो जो कभी लौट कर नहीं आता। जब बर्दाश्त की हद ख़त्म होती है तब बर्बादी की हद शुरू हो जाती है। अल्लाह ने जो अता किया उसे खुशी से कबूल कर लो, और ऐसे तुम मकबूल हो जाओगे। महबूब से कुछ मांगा नहीं जाता, कोई शिकवा या कोई शिकायत नहीं की जाती, क्योंकि उसकी बस खुशी देखी जाती है। इस दुनिया में जितनी आपकी ज़रूरतें बढ़ती जाएंगी, आपकी ज़िंदगी से सुकून उतना ही कम होता जाएगा। ज़िंदगी को एक अमानत की तरह गुजारो, क्योंकि एक ना एक दिन ये अपने मालिक को वापस करनी है। मौलाना रूमी कहते हैं, लोग खुदी और अना में मुब्तिला हैं और रोज़ी की फ़िक्र में लगे हैं, मगर रोज़ी देने वाले से सभी गाफिल हैं। जहाँ पानी गिरता है वहाँ सब्ज़ा उगता है, और जहाँ आंसू गिरता है वहाँ रब की रहमत उतरती है। एक सोचने वाले जिंदा इंसान के ख्यालात में तब्दीली होती रहती है। अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत की फ़िक्र करो, क्योंकि परिंदे अपने बच्चों को परवाज़ करना सिखाते हैं, घोंसले बनाकर नहीं देते। अल्लाह ताला जब किसी बंदे से नाराज़ होता है तो उससे अपनी इबादत को छीन लेता है। अगर तलब सच्ची हो तो खुदा की मदद पहुंच जाया करती है। डर की सोच और कश्मकश से बाहर निकलो और खामोशी में जिंदा रहो। मौलाना रूमी कहते हैं, मैंने शम्स से पूछा कि तसर्रुफ़ क्या है। उसने कहा, दिल में खुशी महसूस करना जब दुख जाहिर हो। मोहब्बत के बग़ैर हर मौसीकी शोर है और सब इबादतें बोझ हैं। इस दुनिया में अल्फाज सिर्फ बहाना है, ये अंदरूनी बंधन है जो एक शख्स को दूसरे की तरफ खींचते हैं, अल्फाज नहीं।
जब मुश्किलात और परेशानियां दिल में डेरा डाल लें तो सब्र से काम लो, क्योंकि सब्र की कुंजी ही खुशियों का ताला खोलती हैं। इंसान को खुदा ने बेहतरीन सांचे में ढालकर पैदा किया है और वो जन्नती या जहन्नमी बाद में बनता है। मौलाना रूमी कहते हैं, थोड़ी देर के लिए कब्रिस्तान जा और खामोशी से बैठ और उन बोलने वालों की खामोशी को देख जो पहले बहुत बोला करते थे। अपने अंदर तब्दीली की कोशिश करनी चाहिए और अल्लाह वालों की सोबत इख्तियार करो, जिससे तुम्हारे अंदर तब्दीली आ जाएगी। मौलाना रूमी कहते हैं कि इस दुनिया में तुम्हारी परेशानियां तुम्हारी बेअदबी और तुम्हारी नाशुक्री से जुड़ी हुई हैं। किसी भी चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ए मेरे दिल, ना तो ये दर्द हमेशा रहने वाला है और ना ही ये ज़िंदगी। इस दुनिया में अच्छी सूरत दिल को मुतासिर करती है, जबकि अच्छी सीरत रूह को। मौलाना रूमी कहते हैं, जब तुम औलिया की खिदमत से दूर हो तो हकीकत में खुदा की खिदमत से भी दूर हो। दिल का इल्म वो है जो इल्हाम और वही से हासिल हो। अगर इंसान में से मैं मर जाए तो उसका इश्क पुख्ता हो जाता है। जो कोई भी बग़ैर मुर्शिद के रास्ते पर चलता है तो शैतान उसे कहीं ना कहीं गुमराह कर ही देता है। ये बात मायने नहीं रखती कि आप कितनी ज़बानें समझ सकते हैं, बल्कि मायने तो ये रखता है कि आप किसी के दिल को समझ सकते हैं या नहीं। तुम्हारी असल हस्ती तुम्हारी सोच है, बाकी तो सिर्फ हड्डी और गोश्त है। जब अकल पर पर्दे पड़ जाएं तो समझाने वाला आदमी सबसे बुरा लगने लगता है। इस दुनिया में सब कुछ खोकर ही अपने आप से मिला जा सकता है। हर फर्द किसी खास मकसद के लिए पैदा होता है और उस मकसद को हासिल करने की ख्वाहिश पहले से ही उसके दिल में रख दी जाती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अगर जान भी चली जाए तो ये घाटे का सौदा नहीं है। इंसान को उसके अखलाक और उसके कारनामों से पहचानो, क्योंकि महज सूरत और उसका लिबास देखकर तुम उसको पहचानने में धोखा खा सकते हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के वसवसे या दिल के बुरे ख्यालात को माफ़ कर दिया है, जब तक कि इंसान उस पर अमल ना करे या ज़बान से ना निकाले। इस दुनिया में मोमिन का जी कभी भी खैर की बात सुनने से नहीं भरता, यहाँ तक कि जन्नत उसका ठिकाना ना बन जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों के ऐब ना टटोलो, वरना अल्लाह ताला तुम्हें रुस्वा कर देगा। अपने मुसलमान भाई की नाहक बेइज्जती करना सूद खाने से भी बड़ा गुनाह है। इस दुनिया में आपका किया गया सदका बुराई के 70 दरवाज़ों को बंद कर देता है। दो आदतें ईमानदार आदमी में जमा नहीं हो सकती, एक कंजूसी और दूसरा बदइखलाकी। जन्नत के मुंतज़िर ना रहो, बल्कि ऐसे बन जाओ कि जन्नत तुम्हारी मुंतज़िर हो। जब इंसान अपना दर्द अपने अल्लाह से बांट लेता है तो उसकी रूह को भी सुकून आ जाता है। ए अल्लाह, मुझे कदम कदम पर तेरी रज़ा की तलाश करने वाला बना दे। मतलब कि कश्ती पर सवार लोग बहुत जल्द ही मुखलिस लोगों से बिछड़ जाते हैं। इस दुनिया में बहुत हसीन है खुदा पर यकीन का सफ़र। किसी ने मुर्गे से पूछा, लोग तुम्हें जीने नहीं देते, काट डालते हैं। तो मुर्गे ने जवाब दिया कि ये दुनिया जगाने वाले का यही हाल करती है। पंछी और इंसान अगर किसी और के दाने के आदी हो जाएं
तो उन्हें आज़ाद कर देना चाहिए। इस दुनिया में सब कुछ हो सकता है, बस तुम्हें अपने रब पर यकीन रखना चाहिए। इस दुनिया में जिसका कोई नहीं, उसका खुदा होता है। जब किसी ज़रूरतमंद की आवाज़ तुम तक पहुँचे तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, क्योंकि उसने अपने बंदे की मदद के लिए तुम्हें वसीला बनाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर नमाज दूसरी नमाज से पहले होने वाली खताओं को मिटा देती है। अपने हाथों से खैरात को मत रोको, वरना तुम्हारा रिस्क भी रोक दिया जाएगा। इस दुनिया में जिसका कोई नहीं होता, उसका अल्लाह होता है। जब तुम कहीं रास्ता भूल जाओ तो वहाँ दाहिनी सिमत इख्तियार करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपना ख्वाब आलिम या अपने खैर ख्वाह के अलावा किसी को ना बयां करो। इस दुनिया में जो लोगों पर रहम नहीं करता, अल्लाह भी उस पर रहम नहीं रखता। कुछ लोग आपकी मदद करने का सिर्फ दिखावा करते हैं, बल्कि असल में वो आपके दुश्मन होते हैं। झुको सिर्फ वहाँ जहाँ तुम्हें झुकाने की जिद ना हो। जिनमें अकेला चलने का हौसला होता है, एक दिन उन्हीं के पीछे काफिले चलते हैं। अल्फाज पढ़ने के लिए आंखें और एहसास पढ़ने के लिए दिल चाहिए। इस दुनिया में अच्छे लोगों की मिसाल उस मोमबत्ती की मानिंद है जो खुद तकलीफ उठाकर दूसरों को रोशनी से भर देते हैं। मुश्किल रास्ते अक्सर इंसान को खूबसूरत मंजिल तक पहुंचा देते हैं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। हज़रत उमर फारूक ने फरमाया कि अल्लाह के सिवा किसी से उम्मीद ना रखो। अपने हिस्से का काम किए बगैर दुआ पर भरोसा रखना हिमाकत है, और अपनी मेहनत पर भरोसा करके दुआ ना करना तकब्बुर है। जब किसी काम का इरादा कर लो तो फिर अल्लाह पर भरोसा करो। इस दुनिया में तुम्हारा हकीकी दोस्त सिर्फ तुम्हारा अल्लाह है। इस दुनिया में शिर्क के बाद बदतरीन गुनाह अल्लाह की मखलूक को तकलीफ पहुंचाना है। हर बात दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा बनना सीखो कि अल्लाह जाती करने वालों को पसंद नहीं करता। कुरान कहता है, अपने दुश्मनों की चालों से परेशान ना हो, क्योंकि बेशक तुम्हारा रब सबसे बेहतरीन चाल चलने वाला है। इस दुनिया में मुस्कुराना सीखना पड़ता है, क्योंकि रोना तो लोग सिखा ही देते हैं। इस दुनिया में लोग जिंदा हैं, लेकिन रिश्ते मर गए हैं। आग अपने ही लगा सकते हैं और गैर तो सिर्फ हवा देते हैं। उम्मीदों के आगे टूट जाना अच्छा नहीं लगता, किसी के आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता, और मुझे देने वालों की ही कतार में रखना मेरे मालिक, क्योंकि तेरे दर के सिवा मुझे कहीं सर झुकाना अच्छा नहीं लगता। इस दुनिया में लोग तो जिंदा हैं, लेकिन रिश्ते मर चुके हैं। किसी के ऐब को तू बेनकाब ना कर, खुदा हिसाब करेगा, तू हिसाब ना कर। हजरत अली ने फरमाया, खूबसूरत चेहरे भी बूढ़े हो जाते हैं, खूबसूरत जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा रहता है। अल्लाह बेहतर करेगा, ये वो अल्फाज हैं जिनसे इंसान की आधी परेशानियां दूर हो जाती हैं। जो शख्स तुम पर गुस्सा करे मगर फिर भी ताल्लुक़ ख़त्म ना करे, वही शख्स बुरे वक्त में तुम्हारा सच्चा साथी है।